Okay, beta. I hope everyone is fine. Chalo, we'll be starting with. I'll lock the meeting within some time. It's 4 p.m. exact. So I'll be doing some synopsis of conservation of momentum, and beta then we'll be doing some introductory exercise. Okay, so that you all can understand. Now onwards, see what will be the pattern. Please mute yourself. Hello. Yeah. If you have some question, then you can ask. Otherwise, keep yourself muted, please. What will be the pattern of teaching? Firstly, I'll be sending video lectures of the topic. You need to see that. Secondly, I'll be doing Zoom lecture of introductory exercise. And then level 1, objective and subjective. And fourthly, there'll be test. So this pattern will be running since now. Mechanics is got over now. This is the last chapter. From next week, I'll be starting with, you must be knowing, we'll be starting with current electricity beta. Pattern. That is your Lecture of introductory example. okay. So okay. So I hope everyone has understood this thing. Now we start with the basic concept of conservation of momentum. Conservation of momentum. ठीक है बेटा. So आपने ये फॉर्मूला तो पढ़ा ही रहेगा. P is mv. P stands for linear momentum, m stands for mass and v stands for velocity. सबको पता है ना बेटा? हाँ बेटा. Yes or no? अच्छा, what is the formula for kinetic energy? Half mv square. Can I do one thing? Can I multiply and divide by m? So it will become half m square v square by m. But what is mv? इसको लिख सकते हैं p square by 2m. So a very important formula, that is kinetic energy of a body, is p square by 2m. इसको नोट करें. Okay. Or it is given on DC Pandey पेज नंबर 15. देखो आपके पास दो तरीके हैं, या तो बुक को अपने सामने रखो डीसी पांडे, या तो आप लिख लो. बिना उसके काम नहीं चलेगा. तो ये पहला फॉर्मूला, काइनेटिक एनर्जी इज p स्क्वायर बाय 2m, और p इज अंडर रूट 2 काइनेटिक एनर्जी इनटू m. दिस विल आल्सो बी वैलिड. ओके सर. सो प्लीज ध्यान रखिए. अब इसके आगे बढ़ते हैं. व्हाट इज लॉ ऑफ conservation of linear momentum telling you? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम आपसे क्या कह रहा है? आपको पता है कि P is equal to mv. Can I take derivative? So it will become dp by dt. We are considering mass as a constant. It will become dv by dt. Yes or no? So can I write this as m into a? What is m into a beta? Force. So force का formula आपको क्या आया? dp by dt. Hello, are you all understanding beta? Very simple cases. We have done this in the 11th also. तो ये फॉर्मूला आप लोग को ध्यान रखना है. दिस इज विच लॉ? एनीवन नोज? न्यूटन्स सेकंड लॉ. कैन यू ऑल हियर मी? हेलो. यस सर. ठीक है, आपको समझ में भी आ रहा है राइट? या
ठीक है. Can I say that if P is a constant, if P is a constant, ये constant है, so it will be F equal to 0. So if momentum of a particle is 0, is constant, then force is 0. Or we can also apply this for system of particles. Can I say if momentum of system of particles is 0, is constant, then force is 0. Or I can say if momentum of center of mass is constant, then force is 0. So this whole thing, this whole concept can be applied to a single particle. I'll do it. देखो इधर, suppose एक particle है. Okay. Can I say इसके ऊपर फोर्स जो लग रहा है, एक्सटर्नल फोर्स वो 0 है. एक्सटर्नल फोर्स 0 होने का मतलब क्या है? एक्सेलरेशन कितना है? कम ऑन प्लीज यार बताओ, एक्सेलरेशन कितना है इसका? हेलो, प्लीज स्पीक. एनीवन? How much is the acceleration of the particle? 0. So the acceleration is 0. Can I say velocity becomes constant? Yes or no? आवाज नहीं आ रही है क्या? Yes sir. आवाज आ रही है ना? Yes. अभी आवाज, Yes, sir. अभी आवाज आ रही है सब लोगों को? आवाज आ रही है. Yes sir. ठीक है ठीक है ठीक है. तो ये समझ में आ गया, दिस इज फॉर अ सिंगल पार्टिकल. अगर इसके ऊपर लगने वाला फोर्स 0 है तो एक्सेलरेशन 0 है, तो वेलोसिटी कांस्टेंट है. अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो मोमेंटम भी क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा. अच्छा, rather than considering this, if we consider beta system of particles. Sir, everyone is saying their mic is muted. एक मिनट, let me see. अभी ठीक है? हेलो. Yes sir. Yes sir, yes sir. Yes sir. ओके ठीक है ठीक है. चलो, Come back to the वापस- previous slide for a second. या So here SOP means what sir? सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स. बहुत सारे पार्टिकल्स है. आई एम डूइंग इट राइट नाउ. एक मिनट रुक जाओ आप. ओके. Okay sir. System Okay, of particles. System of particles. System of particles means SOP. बहुत सारे particles है. Namely M1, M2, M3, Mn. Hello. Yes or no? Yes sir. Yes sir. F1 bar plus F2 bar plus F3 bar plus F4 bar plus Fn bar is 0. Then P1 bar plus P2 bar plus P3 bar plus P4 bar plus Pn bar is what, sir? Is a constant? Constant. Arey, same thing, Baba. You applied for single particle. Now we are doing for system of particles. Similar thing can you do for center of mass? Okay, suppose ये एक body है, इसका center of mass इधर है. Can I say if force applied at center of mass is 0, then momentum of center of mass is what, sir? Constant. That's why I told you that this law can be applied to a particle, to a system of particles, as well as to center of mass. Are you all understanding? देख लो भाई, याद आ रहा है? Okay, so Yes, what is the sir. basic rule? That if momentum is constant, then net external force, external internal नहीं, हाँ, is what, sir? 0. और हमको पता है ये दोनों कौन सी क्वांटिटीज है? वेक्टर क्वांटिटीज है. भाई याद आ रहा है आप लोग को? ठीक है? हेलो. Yes.
चलो अब है ना कुछ सम्स करते हैं इसके ऊपर. आई विल बी डूइंग सम इंट्रोडक्टरी एक्सरसाइजेस so that you all can understand it more clear. अच्छा, सब लोगों को पीपीटी दिख रहा है? Yes, sir. Yeah, so I have made beta PPT of all the introductory exercises and we are going to do it in the flow only, फटाफट. And right now we'll be doing like this only. तो आप लोग को लेक्चर वगैरह घर पे देखना पड़ेगा, उसका बेसिक लेक्चर, और ये सॉल्विंग करेंगे तो ज्यादा आपका स्ट्रांग हो जाएगा. चलो शुरू करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1. It is introductory exercise 11.3. Page number 19. Introductory exercise 11.3. ठीक है. अब देखो क्वेश्चन में क्या दिया है. 3 particles of 20, 30 and 40 are initially moving along the positive x direction of the 3 coordinate axis. Means what? ये x axis है, ये y है और ये z है. तो 20 ग्राम ऐसे जा रहा है. ओके, 30 ग्राम y एक्सिस में जा रहा है और 40 ग्राम ऐसे जा रहा है. कितने स्पीड से? तीनों का स्पीड सेम है, दैट इज 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड. दिस इज ऑल्सो गोइंग विथ 20 एंड दिस इज ऑल्सो गोइंग विथ 20. इज एवरीवन अंडरस्टैंडिंग? सबको दिखाई दे रहा है? Yes, sir. Yes. Yes, sir. When due to the mutual interaction first particle comes to rest, मतलब दोनों मिले, okay, the first particle finally comes to rest. Okay, क्या क्वेश्चन में क्या म्यूचुअल इंटरेक्शन? व्हाट डू यू मीन बाय म्यूचुअल इंटरेक्शन? इंटरनल फोर्स बोलो. एक्सटर्नल फोर्स कितना है? 0. द फर्स्ट पार्टिकल कम्स टू रेस्ट, मतलब उसका फाइनल वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल इज 0. द सेकेंड पार्टिकल का वेलोसिटी इज 10 i cap plus 20 k cap. What is the velocity of the third particle? v3 bar. चलो फटाफट, which formula to use? Can I say f external is 0? That means initial momentum is equal to final momentum. Hello. Can Yes, I say sir. this is Yes, m1 u1 bar plus m2 u2 bar plus m3 u3 bar is equal to m1 v1 bar plus m2 v2 bar plus m3 v3 bar. चलो भाई, m1 कितना है? 20 है. v1 बार क्या है? v1 बार इज 20 i cap. m2 कितना है? 30 और उसका वेलोसिटी कितना है? 20 j cap. और तीसरा वाला कितना है? 40 और दिस विल बी 20 k cap. एंड फाइनली m1 इज 20, वेलोसिटी उसका 0 हो गया. देखो, ओके, सेकंड वाला क्या रहेगा? 30 इंटू 10i प्लस 20k और तीसरे वाले का हो जाएगा m3, दैट इज 40 इंटू v3 बार. हेलो, तो यार ये क्या हो गया? पहले केस में हो गया 40i प्लस 60j प्लस, नहीं मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, ये 400i रहेगा, ये 600j रहेगा और ये 800k रहेगा. विल बी 0 प्लस के ये है 30, दैट इज 300i प्लस 600k प्लस 40 v3 बार. चलो बाबा, कितना हो गया? फटाफट बताओ. हेलो, Sir, 2.5 I cap plus 15 J cap plus 5. v3 bar will become 400 minus 300, it will become 100. 100 by 40 कितना होता है? 2.5 i cap प्लस 600 j by 40 ना, बराबर है क्या? 15 J cap 15 j cap plus 5 K प्लस cap. कितना आता है? 5 sir, 200 by 40. 5 k cap. डन. यार ये सब इजी समझे. आपको समझ में आ गया रहेगा. हेलो, यस और नो? Yes, sir. Yes, वी गो टू द sir. नेक्स्ट स्लाइड नाउ. ये कोई टाइम पास है ये सब स्लाइड, ठीक है? ये कर सकते हैं ना आप लोग? वी गो टू द नेक्स्ट स्लाइड. Yes. You want to write Sir. it? Anyone? Sir, Screenshot. 1 minute. Right. Want to write. Sir. No, बेटा एक काम करो, स्क्रीनशॉट ले लो उसका. We will waste time in writing. We have only limited time.
So this Sir. PPT's annotation you can save and send it to us. हाँ वो भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं. You can take a screenshot ना, that is better बेटा. Ah, yes, sir, that is better. Yeah, That is screenshot सीधा ले लो ना फटाफट यार. हैं? Come on. ले लिया? Next slide. Okay बेटा. Question number 2. Question says what? A boy of mass 25 kg stands on a board. So there is a board of mass 10 kg. And there is a boy which is standing over here. कितना मास है इसका? बेटा कितना मास है इसका? 25 kg. Okay. The boy makes a jump. He is jumping over here with 5 meters per second with respect to ice. Can anyone tell me where is ice? the floor, sir. हाँ. This is ice. Huh? मतलब the ground is ice. बोलो. So this velocity is with respect to ground. समझ में? Absolute. इसको क्या बोलेंगे बेटा? Absolute velocity. Absolute velocity. हाँ भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है. बिकॉज ऑलवेज रिमेंबर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हमेशा एब्सोल्यूट होता है. कभी कभी है ना आपको विद रिस्पेक्ट टू बोर्ड भी दे सकता है वो. हेलो, तो रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट आएगा. अच्छा आगे बढ़ते हैं. विद व्हाट वेलोसिटी डज द बोर्ड रिकॉइल? अच्छा ये सम हो गया बुलेट एंड गन वाला. अरे बाबा, अगर पर्सन आगे जाएगा तो बोर्ड कहाँ जाएगा? पीछे. पीछे जाएगा. सो suppose he goes पीछे with a velocity vb. So can I say m1 v1 forward is equal to m2 v2 backward? ये तो हम लोग ऐसे ही करते थे ना. mass of the bullet, velocity of the bullet is mass of the gun, velocity of the gun. याद आ रहा है भाई? हेलो. Yes, sir. Because initial momentum तो जीरो है, तो फाइनली भी इसको जीरो होना मांगता है. m1 v1 चलो यार ये सब कर लो. 25 into 5 will become 10 into how much? ये तो how much तो मिल ही जाएगा आपको यहाँ से. Got it, sir? अच्छा कुछ दिक्कत है इसमें? अच्छा मैं सपोज आपसे कहूँ, सुनो हाँ अभी थोड़ा. हेलो एवरीवन. हाँ सर. अगर मैं आपसे कहूँ बेटा, सुने मेरी बात. हाँ, अगर मैं आपसे कहूँ ये बोर्ड है, कितना है? 10 वाला. थोड़ा फटाफट सुनो बेटा. आई वांट टू डू 15 सम्स. ही इज जंपिंग 5 मीटर पर सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू बोर्ड. ओके सही. एंड इज 25 ना, इज 25 kg. चलो अब बताओ क्या करेंगे. अब मेरी बात सुनो सब लोग ध्यान से. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. इसको ऐसे ड्रॉ करना है. दिस इज 10. अगर ये आगे जंप करेगा तो ये पीछे जाएगा विद द वेलोसिटी व्हाट? v1. हेलो. हाँ सर. Yes, sir. Can anyone Yes, tell sir. me Yes. what will be his absolute velocity? 5 5 plus v1 5 plus v1. no Minus. this Minus. is बेटा ऐसे मत करो. this is relative velocity. this is relative velocity. आपको एब्सोल्यूट पूछा है. रिलेटिव अगर होता है तो ऑपोजिट डायरेक्शन में ऐड करते हैं. हेलो, एब्सोल्यूट अगर होगा तो ऑपोजिट डायरेक्शन में सब्ट्रैक्ट करेंगे. एग्जांपल, यू गो टू एन एयरपोर्ट. एयरपोर्ट में एस्केलेटर पीछे चल रहा है, आप आगे चल रहे हो. हेलो, Yes, sir. तो आपका स्पीड कितना रहेगा यार? 5 minus Minus v1. s. यस और नो? हेलो. Yes, sir. Yes, sir. तो ये है एब्सोल्यूट. भाई ध्यान रखो, सब लोग ध्यान रखेंगे. अगर विद रिस्पेक्ट टू बोर्ड दिया है, तो रिलेटिव मोशन दिया हुआ है, तो आपको एब्सोल्यूट में कन्वर्ट करना पड़ेगा. चलो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? 25 into 5 minus v1 is equal to 10 into v1. तो यहां से आपको v1 मिल जाएगा. आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस थिंग. Yes, यस sir. और नो?
Yes, sir. ध्यान रखना भाई, ये आ चुका है पहले भी, तो ध्यान रखना ये चीज। ओके फाइन, चलो आगे बढ़ते हैं। Find the ratio of linear momentum of two masses if the kinetic energies are equal. यार ये कोई सम ही नहीं है। Kinetic energy 1 is equal to kinetic energy 2. What Yes, is sir. kinetic energy? E square by 2m. Hello. Yes, sir. तो ये तो कैंसिल हो गया, ये तो कैंसिल हो गया। What will be P1 upon P2? हाँ, रूट ऑफ M1 and M2 दिया हुआ है, उसका रूट निकाल लो। 1:2। अरे ये कोई सम है क्या? चलो आगे बढ़ते हैं। Sir, can you No. come to the previous sum, sir? We missed Yeah. something. Yeah. I'll come. एक मिनट। एक मिनट। हाँ। Sir, the second part, with what rate are the boy and board separating from each other? हेलो, वेट फॉर 2 minutes। हाँ,
हेलो हेलो, Yes, sir. आवाज आ रही है? अच्छा, इसका एक पार्ट रह गया था, एक पार्ट क्या कह रहा है ये? हाँ भाई, So with what rate हाँ, are with the what rate they are separating, मतलब indirectly what are they asking you? Aryan, you only tell me. V relative, yeah? तो V relative तो निकाल सकते हैं आप, V1 निकाले, आप V1 इसका हाँ. निकालो जरा, you can find V1, Yes, so we We got that. already found. you got it ना, relative velocity चाहिए, ठीक है यार वो। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। यूरेनियम 230 इनिशियली एट रेस्ट, मतलब इनिशियल मोमेंटम उसका जीरो था पूरी बॉडी का, देखने से ही पता चलता है इनिशियल मोमेंटम जीरो है। एमिट्स एन अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल का मास कितना होता है? हेलो, अल्फा पार्टिकल, हाँ 4, 4. यस और नो? Yes, sir. अच्छा बचेगा क्या, देखो बचा थोरियम, बचा थोरियम, कितना बचा थोरियम? 234, तो पहले वाला मास नंबर वाज दिस एंड सेकंड वाला मास नंबर इज दिस, मतलब कैन आई से m1 इज 4 and m2 is 234? Can I say this is like a bullet and gun only, na? Who is the bullet? Alpha particle. Who is the gun? Beta thorium. Yes or no? And how much is the पहले वाला velocity? 1.4 into 10 raised to 7 meter per second. So how much is this velocity? कोई बता सकता है कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है? बुलेट एंड गन, हेलो अरे यार, m1 v1 m2 v2, M2. या तो ऐसे लिख सकते हैं m लेफ्ट v लेफ्ट इज इक्वल टू m राइट v राइट, बिकॉज अगर एक पार्टिकल आगे जाएगा तो दूसरा पार्टिकल ऑब्वियसली पीछे जाएगा, सो m लाइट m लेफ्ट v लेफ्ट इज इक्वल टू m राइट v राइट, ये कर सकते हैं आप लोग, यस और नो? यस, r is right, r is right, v l is left, yeah, I cannot hear you, hello, who is this? ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, Sir, can you go to the previous one for just a second? Sir, done. okay, next fifth one. A man, one sec please, a man of mass 50 kg starts moving on the earth and acquires a speed of one. I can't hear you, hello, who's this? With what speed does the earth recoil? This is like what, you know, अभी किया था थोड़ी देर पहले हमने सम, भाई ये बोर्ड है, इसको पकड़ो अर्थ, ये पर्सन है, ओके, पर्सन ऑफ मास 50 going at the speed of what? 1.8. Can I say this is earth? कितना मास दिया है? 6 into 10 is to 24. Yes or no? He is going with what speed? हेलो, कैसे करेंगे? अच्छा पीछे क्यों जाएगा वो, कोई बता सकता है पीछे क्यों जाएगा? Who, which force takes him backward and forward? Friction. फ्रिक्शन, देखो ये पर्सन के पैर में जो फ्रिक्शन लगा है वो आगे की तरफ है, आपको मालूम है, आप जब चलते हो तो फ्रिक्शन पीछे नहीं लगता है, फ्रिक्शन आगे लगता है, बिकॉज आप जमीन को पीछे पीछे थ्रो करते हो ना, यू देयर इज अ, you walk in such a manner that you put your feet in the backward direction, so there is friction forward, and can I say same friction which is an internal force will be acted on the earth which will take him backward. So यहां पर भी क्या करना है, m left v left is equal to m right v right, hello, yes or no? Yes, sir. So always remember it is due to internal frictional force, not due to any external force, because external force zero hai. We are not taking gravity into consideration over here.
ठीक है बेटा. क्वेश्चन नंबर 6. यार ये कैसे करे, वही सम है. चलो, हु इज गोइंग टू टेल मी? वही सम है ना. देयर इज अ ट्रॉली and a mass of the person who is standing 60 kg jumps with an absolute speed of how much? 3 meter per second, and this guy is 20. इसका v मिलेगा. चलो ढूंढो कितना है v. m left v left is equal to m right v right. Come on anyone, what is v1? 9. ये तो मिल गया. अब और क्या पूछा है? what is the total energy produced by the man? Total energy is in the form of kinetic energy. It will become half mv square of the man plus half mv square of the trolley. ये कर सकते हो? yes or no? अरे हाँ भाई. Yes, sir. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7. तो दीज आर ऑल इंट्रोडक्टरी टाइप्स. अगर आपको आ जाएगा तो अच्छा रहेगा. क्वेश्चन नंबर 7. A projectile is fired from a gun. Now this is a good question. A projectile is fired from a gun at an angle of 45 degree with a speed of 20 meter per second. 45. Okay. At the highest point, I know that. One sec. At the highest point, ये तो ऐसे परफॉर्म करेगा. अच्छा, कोई बता सकता है ये डिस्टेंस कितना है? कितना है? Can I say it is going to cover maximum range? हाँ, u square sin 2 theta by g. maximum range आएगा ना? U square by g. हेलो, अरे Yes, sir. u square sin 2 theta by g. तो become u square by g. कितना होता है? 400 by 10. ये तो हो गया 40. Can I say अगर ये मास एक्सप्लोड नहीं होता तो वो ऐसे गिरता? Yes, sir. But they are telling you at the highest point it explodes. अच्छा, एक्सप्लोजन किसके कारण होता है? इंटरनल फोर्स के कारण कि एक्सटर्नल फोर्स के कारण? Internal force. One fragment whose initial speed is 0 falls vertically. So there is a fragment explodes into two fragments of equal masses. So can I say यहां पर एक मास ऐसे गिर गया, इधर आके गिर गया. Okay. How far? This is another mass. How far from the gun does the other fragment land? So can I say this fragment will follow some path like this and land over here? So can I say this m1 which is m will land here? This m2 which is also m will land here, which I don't know. Okay, you told me that external force is how much? 0, sir. हाँ, अभी ध्यान से है बेटा. एक्सटर्नल फोर्स 0 है. इसका मतलब सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन, सेंटर ऑफ मास का मोमेंटम क्या है? कांस्टेंट है. मतलब सेंटर ऑफ मास will follow the same path as original path. Do you agree with me? हाँ भाई. अरे ये स्टेटमेंट समझा गया? कुछ डाउट है तो पूछो. प्लीज डोंट रिमेन साइलेंट. ऐसे मत करो. हाँ, कुछ डाउट है तो पूछो मेरे से.
एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास इज कांस्टेंट। इसका मतलब सेंटर ऑफ मास जो रास्ता फॉलो कर रहा था स्टार्ट से वही रास्ता फॉलो करेगा। सेंटर ऑफ मास कौन सा रास्ता फॉलो कर रहा था? प्रोजेक्टाइल। पहले सेंटर ऑफ मास इधर था, फिर इधर आ गया, फिर इधर आ गया, है फिर इधर आ गया, फिर इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा। यस और नो? ये क्या है? सेंटर ऑफ मास है। हेलो हेलो। यस सर। Yes, sir. हाँ अभी मजा आएगा। तो दैट मीन्स कैन आई इमेजिन द स्टोरी दैट देयर आर टू मासेस। ये इसको देखो पूरे को। अब आप देखकर ही, जो लोग थोड़े होशियार है उन लोग देखकर ही निकाल सकते हैं। कोई बता सकता है ये डिस्टेंस कितना है? 20 मीटर। 20 meter. 20 मीटर। और मास यही है, मास m है। तो अगर ये मास है तो ये सेंटर ऑफ मास से कितनी दूरी पर रहेगा? 20 20 मीटर। meter. हो गया आंसर। तो हाउ मच इज द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिनल गन? 60 meter. 60 मीटर। डन, आंसर इज ओवर। अरे भाई ये 20 है, ये 40 है, तो ये टोटल 60 हुआ ना। सो टोटल डिस्टेंस फ्रॉम वेयर द m2 विल फॉल डाउन 60 meter. I hope you all have understood what is the basic important concept. This is the important concept. But if external force is 0, momentum is constant of the center of mass, and center of mass is going to follow the same path as the original path. Original path was projectile. The final path will also be projectile. चाहे उसके fragments कहीं पर भी जाए. Hello? Yes or no? Yes sir. हाँ तो आपको कुछ फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैंने आपसे कहा था कि सेंटर ऑफ मास के सम्स पहले देख लिया करो। ओके प्लीज जो वीडियोस दिए जा रहे हैं उसको देख लिया करो, वरना वो पेंडिंग बढ़ता जाएगा फिर। ओके चलो अभी एक काम करते हैं, वी कम बैक टू अवर सम इंट्रोडक्शन सम पार्ट। आई वांट टू आई शेयर द व्हाइट बोर्ड। अभी और एक कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ते हैं, ओके, ऑफ वेरिएबल मास। Variable mass concept, it is given on page number 20. Page 20 इसको बोलते हैं वेरिएबल मास कॉन्सेप्ट। अच्छा वेरी गुड। सुनो सुनो बेटा प्लीज इधर। व्हाट इज एफ का फॉर्मूला? अरे अभी किया ना थोड़ी देर पहले, dp by dt। dp by dt। yes or no? अच्छा what is p stand for? लीनियर मोमेंटम। सब आप लोग साथ दो मेरा बेटा प्लीज, वरना ये ऐसे ही एकदम रूखा सूखा रहेगा, मजा नहीं आएगा। चलो इसका डेरिवेटिव लो, यूवी रूल। हमने पुराने फॉर्मूलाज में m को कांस्टेंट पकड़ लिया। हेलो Yes sir. बट अभी इधर कांस्टेंट नहीं है, अभी इधर वेरिएबल मास है। तो वी आर कंसीडरिंग दैट मास इज आल्सो यूवी रूल। u डेरिवेटिव ऑफ M v dv by dt हाँ, plus plus v dm by dt. v dm by dt। तो एक्चुअल फॉर्मूला फॉर फोर्स है ना, एक्सटर्नल फोर्स का एक्चुअल फॉर्मूला ये है m a प्लस v dm by dt। आपको समझ में आ रहा है? यस सर। अच्छा अगर इसको dv by dt लिखता हूं मैं, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो ये टर्म जीरो हो जाएगा। तो एक्सटर्नल फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? v dm by dt। v dm by dt, v dm by dt। तो आज अभी हम लोग ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करने वाले इन वेरिएबल कॉन्सेप्ट where v is considered to be what? A constant but mass is changing. Sir give me some example, कुछ एग्जाम्पल बताओ। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल इज, कोई दे सकता है? Rocket sir. Rocket. एग्जाम्पल। अब उसको डिराइव करते हैं, मजा आएगा बहुत, फिर बाद में फटाफट यूज करेंगे हम लोग। रॉकेट एग्जाम्पल देखो सब लोग, मेरी बात सुनो। सपोज एक रॉकेट है, इसका डेरिवेशन आपकी बुक में भी दिया हुआ है। एक रॉकेट है जिसका इनिशियल मास इज m0, टाइम 0 पर इसका मास कितना है बेटा? m0 है। कैन आई से इनिशियल वेलोसिटी इसका है u। ओके एंड मास इनिशियल कितना है? इनिशियल मास इज m0। ओके दिस विल बी
mass of fuel plus mass of क्या? Of satellite or whatever. रॉकेट रॉकेट Yeah. रॉकेट, खाली रॉकेट प्लस फ्यूल. अभी Yes, sir. कुछ समय बाद at time t he is going to release exhaust gases. Okay, with a speed vr. What is vr speed? Relative velocity of the exhaust gases with respect to rocket. Hello, Yes, sir. vr को बोलेंगे relative velocity of exhaust gas with respect to whom? earth No. Rocket. with respect to The rocket. rocket itself. Sir. बेटा इधर मेरी ध्यान दो. कभी भी रॉकेट में अर्थ नहीं होता है, बिकॉज स्पेस में कहाँ अर्थ है? स्पेस में तो भाग जाएगा वो. तो नेवर इट इज टेकन वी एब्सोल्यूट, इट इज ऑलवेज टेकन वी relative. Relative. ध्यान रखना है. रॉकेट में तो यार स्पेस में चला गया, अर्थ किधर है? अंडरस्टैंड? तो ये चीज Yes. ध्यान ही रखना है. इट विल बी ऑलवेज वी आर relative velocity of the exhaust gases. स्पेलिंग शायद रॉन्ग है, तो भी आएगा exhaust gas with respect to rocket. ओके. अच्छा, टाइम टी पर. अच्छा, गैस जब जलेगा बेटा, यहां से जो गैस जलेगा, तो कहना इसे मास कम हो जाएगा. लेट द मास बी m at this instant. हेलो. Yes, sir. Yes, sir. और यहां पर एक वेलोसिटी जो आएगा, दैट विल बी v. पहले वेलोसिटी कितना था? व्हाट इज इनिशियल वेलोसिटी बेटा? U. व्हाट इज द फाइनल वेलोसिटी बेटा? v. V. ये v किसके कारण आया? ये v किसके कारण बढ़ गया? थ्रस्ट So के the- कारण. थ्रस्ट के कारण. किसके कारण? थ्रस्ट के कारण. अच्छा, थ्रस्ट क्या होता है मैं आपको बताता हूँ. देखो मेरी बात सुनो सब लोग. एवरीवन जस्ट पे अटेंशन ओवर हियर. ओके, शुरू करते हैं बेटा. ये सबको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आपको? Yes, sir. हाँ भाई, दिस कॉन्सेप्ट यू हैव अंडरस्टूड. अब एक सिनेरियो लेते हैं वेयर मैं डिराइव कर रहा हूं फॉर्मूला फॉर विच फोर्स बेटा? थ्रस्ट फोर्स. सब लोग इधर ध्यान से हैं बेटा. सपोज स्टार्टिंग में रॉकेट रेस्ट पर था, इसका यू कितना था? 0 था. ओके, फाइनली एग्जॉस्ट गैस बाहर आया. ओके, एंड ही गोज with a velocity v. Let the exhaust gas का mass be dm and his velocity be vr. So his mass will be, इसका पहले मास m ही था, इसका मास कितना हो जाएगा अभी? माइनस m minus dm. मैं डेराइव कर रहा हूँ, आपको जरूरत नहीं है डेरिवेशन की. आपको चाहिए तो एंड में याद कर लेना सीधा, बट यहाँ पे डेरिवेशन है, थोड़ा और समझ में आएगा. Can I say external force beta is 0? So initial Yes, momentum sir. of the system is equal to final momentum of the system. Initial momentum 0 है, because ये देखो 0 है ना, velocity 0 है. Final momentum कितना रहेगा? Final momentum कितना है? m minus dm into v. m minus dm, एकदम आराम से into v. ये किसका है? ये किसका है? रॉकेट का है ना. Yes, sir. रॉकेट कहाँ जा रहा है? ऊपर के नीचे, ऊपर ऊपर ऊपर. अच्छा, गैस कहाँ जा रहा है? नीचे नीचे. गैस का मोमेंटम लिखकर बताओ. चलो, Minus dm vr. माइनस dm dm Into vr. नो vr उसका रिलेटिव स्पीड है. उसका एब्सोल्यूट स्पीड कितना रहेगा? VR minus. अभी सिखाया था वो सम यार, आप लोग भूल मत जाओ प्लीज यार. हेलो, क्योंकि ये जो फॉर्मूला है ना, दैट इज ओनली विद विच कंडीशन? एब्सोल्यूट कंडीशन. आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग यार, जो गलती करते हो. Yes, sir. Hello? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये प्लीज गलती मत करना यार, ये पूरा खराब हो जाएगा. तो इसको ओपन करते हैं. एम वी माइनस डी एम वी
माइनस DMVR माइनस DMV, कुछ गलती हो रही है, ये प्लस DMV हो गया, यस और नो, ये उड़ गया, ये उड़ गया, यस और नो। Yes, sir. हाँ तो ये क्या हो जाएगा बोलो, MV इज इक्वल टू DMVR. DMVR। अब एक काम करते हैं, हम लोग डेरिवेटिव लेते हैं d by dt, तो by dt if I divide by time it will become m dv by dt, this will be VR as constant, this will be dm by dt, okay, indirectly we are dividing by time। हेलो, Yes, sir. Yes, sir. ये क्या है, ये क्या है, फोर्स है ना, फोर्स, इस फोर्स को बोलते हैं थ्रस्ट फोर्स, will become VR dm by dt। देखो यही प्रूफ किया था ना यहाँ पर, अरे देखो ये v dm by dt, देखो तो यही तो आया है यार। हाँ Yes, sir. अच्छा, ये प्रूफ की कोई जरूरत नहीं है अभी, यहाँ पर आप लोग ध्यान रखना, ऑलवेज थ्रस्ट फोर्स किसके ऊपर लगेगा, रॉकेट के ऊपर लगेगा। हेलो, रॉकेट Yes. के ऊपर हमेशा क्या लगेगा, थ्रस्ट फोर्स। अभी थोड़ा और कॉन्सेप्ट सीख लो, थोड़े और कॉन्सेप्ट जो आपको काम लगेंगे। थ्रस्ट फोर्स का एक्चुअल फॉर्मूला इज VR प्लस माइनस dm by dt। केस 1, रॉकेट के केस में dm by dt नेगेटिव है क्या पॉजिटिव है? Negative. Mass Negative, sir. decreases. Mass decreases. Force will become VR minus dm by dt। Hello, Yes, sir. what does vectorially this mean? That the Opposite thrust direction. thrust force, relative motion, relative velocity का डायरेक्शन ये है, तो thrust force का डायरेक्शन क्या होगा, ऊपर, Upward. मतलब जो रॉकेट का स्पीड है वो बढ़ेगा घटेगा, Increase. increase, but relative speed of the exhaust gases is always going to remain the Same. Same. सेम। यार आप लोग डीसी पांडे पढ़ो, सेम छाप दिया है मैंने यहाँ पर उठा के, आपके सामने है सब कुछ। हेलो, केस 2, सपोज ऐसे बात करता है, सपोज यहां पर मैंने एक लंप ऑफ क्ले DM VR से फेंका और ये आके इधर चिपक गया, ये आके चिपक गया, कौन सा फॉर्मूला, कौन सा थ्रस्ट फोर्स लगेगा ट्रॉली के ऊपर, फॉर्मूला क्या रहेगा ट्रॉली का, VR plus VR VR प्लस DM by dt। plus dm by dt. तो VR DM by dt प्लस है, तो थ्रस्ट फोर्स भी वही डायरेक्शन में लगेगा जिस डायरेक्शन में VR है। Yes, sir. हेलो 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 हेलो, यस और नो? Yes, sir. हाँ, अभी एक टिपिकल कॉन्सेप्ट करते हैं, मेरी बात सुनो, ये फ्लूइड्स में बहुत काम लगेगा। इज एवरीवन विद मी? हेलो Yes, sir. यार, Yes, मेरे को sir. टाइम पास नहीं करना है यार, बार बार आई जस्ट वांट टू गिव यू द होल कॉन्सेप्ट एंड आगे बढ़ना है। प्लीज बी विथ मी है एवरीवन, कोई भी एक मिनट के लिए उधर उधर नहीं जाएगा प्लीज, बाद में चाय पीना आप लोग हैं। चलो इधर, ये एक टैंक है, पानी भरा हुआ है, एंड इट इज प्लेस्ड ऑन अ फ्रिक्शनलेस फ्लोर। यहां पर मैंने एक होल कर दिया, ये पानी बाहर आ रहा है with relative velocity VR। This relative velocity is the relative velocity of the water which is coming out with respect to the tank, with respect to the beaker। कोई बता सकता है बीकर के ऊपर थ्रस्ट फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा? Opposite direction. Opposite. हाँ, थ्रस्ट Mass decreases. थ्रस्ट फोर्स ऐसे लगने वाला है, आपको पहचानने आ जाना चाहिए। हेलो, अच्छा थ्रस्ट फोर्स निकाल भी लेते हैं। व्हाट इज थ्रस्ट फोर्स का फॉर्मूला? V dm by dt. V dm by dt, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन तो मिल गया ना माइनस, तो डोंट राइट Yes, माइनस sir. अगेन अगेन। थ्रस्ट फोर्स ये VR है, VR को V लिखेंगे हम लोग, V dm by dt। बेटा मास को
मास को मैं लिख सकता हूँ डेंसिटी इनटू वॉल्यूम. Yes, sir. Thrust force will become V rho. वॉल्यूम को लिख सकते हैं बेटा एरिया ऑफ द ओरिफाइस. ये जो होल है ना, ये होल का एरिया कितना है, A into dx by dt. The area of the technical word was what? एरिया ऑफ द ओरिफाइस. ओरिफाइस इसको फ्लूइड में आएगा बेटा, ओरिफाइस. एरिया ऑफ द होल यार, क्या प्रॉब्लम है इसमें है? Yes, yes, sir. चलो ना है. हेलो. Yes, sir. अच्छा, व्हाट इज dx by dt? V. Only. So what will be the general formula? Rho a v square. Rho a, अरे एक ये v है ना, और ये दूसरा v आ गया ना. Rho Yes, a sir. v square. Rho a v square. Rho a v square. आप लोग बोलेंगे सर डीसी पांडे में किधर है? It is given on page number 39. प्रूफ है पूरा. पेज नंबर 39 पर ये पूरा प्रूफ दिया हुआ है इन फाइनल टच पॉइंट्स. यस और नो सर? अरे भाई बोलो. Yes, sir. तो यही सेम कॉन्सेप्ट फ्लूइड्स में हम लोग बहुत टाइम लगाएंगे. ये रो ए वी स्क्वायर बहुत फेमस फॉर्मूला है, रो ए वी स्क्वायर. ठीक है, अब हम लोग और आगे बढ़ते हैं. चलो रॉकेट की बातें करेंगे. रॉकेट की बातें सुनो अभी मेरी बात बेटा, प्लीज मेरी बात सुनना. एवरीवन, वी आर डिराइविंग समथिंग. पहले वेलोसिटी इसका u था, मास m0 था, टाइम 0 पर. फिर क्या हुआ, वेलोसिटी v हो गया, मास m हो गया. एग्जॉस्ट गैस कम्स आउट विद द वेलोसिटी vr. हेलो, यस और नो? ठीक है ना? ओके, दिस इज एट टाइम 0, दिस इज एट टाइम t. At time t, how many forces are acting on the rocket? चलो बताओ यार फटाफट. Weight and thrust. वेट तो है ही. वेट कितना है? mg. अब थ्रस्ट कहाँ लगेगा? अब थ्रस्ट नहीं, थ्रस्ट फोर्स. हाँ, थ्रस्ट भी बोलो, जो बोलना है बोलो ना भाई. क्या रहेगा अब थ्रस्ट का फॉर्मूला? हाँ, VR dm by dt. dt. माइनस मत लेना बिकॉज अब थ्रस्ट का फॉर्मूला ऊपर ही ले लिया ना आपने तो. वेयर इज वेट एक्टिंग? Down. अरे वेट इज डाउन, दिस इज अप. तो नेट फोर्स क्या बना? FT minus ft weight. minus w. ft minus w. f net vr dm by dt minus w. w क्या रहेगा? mg. भाई व्हाट इज m? m is the mass at that instant. हेलो, यस और नो? Yes, sir. अच्छा, f net को लिख सकते हैं क्या? f is ma. यस और नो? कैन आई डिवाइड बाय m? सो ये क्या मिलेगा? vr dm by dt. So yeah, what will be the mass? Yeah, m will be the reduced mass mass. at time t. हेलो, After this gas mass is टाइम t ना reduced. बेटा, टाइम t पर जो इंस्टेंटेनियस मास है. हेलो, Okay, okay, so understood. टाइम t की बात हो रही है ना बेटा. टाइम t पर जो मास है वही लेना है ना, पहले और Yes, आगे sir, पीछे yes, का sir. थोड़ी देखना है. Yes, sir, ऐसे दिस विल understood. बी a vr by m dm by dt minus mg by m. ये g हो जाएगा. ये मैं प्रूफ कर रहा हूँ, प्रूफ दिया हुआ है पेज नंबर 21 पे. एक्सेलरेशन को बेटा लिख सकता हूँ dv by dt vr by m dm by dt minus g. सबको समझ आ रहा है क्या? हेलो, Yes, Yes, sir. sir. अब क्या करेंगे? अब एक काम करो, dt उधर ले लो. तो dv will become vr dm by m. देखो ना, dt उड़ जाएगा ना पहले केस में, और ये हो जाएगा माइनस जी dt. अरे सब मैथमेटिक्स चैंपियन लोग बैठे हैं यार, ऐसे मत करो तुम लोग. है
चलो भाई आगे, इसको क्या करना है? अब ये तो वेरिएबल फॉर्मूला है, Integrate. Integrate. रेडी करना पड़ेगा। इंटीग्रेट इंटीग्रेट इंटीग्रेट। चलो बाबा, इसका लिमिट क्या रहेगा वी डीवी का? यू से U वी to तक, V. यू है ना स्टार्ट में भाई, बाद में वी हो गया। अच्छा डीएम बाई एम, डीएम बाई एम का लिमिट क्या रहेगा? M not to M. परफेक्ट मैन, एम नॉट टू एम। एंड इसका लिमिट क्या रहेगा? 0 टू टी। 0 to T. मजा आ रहा है ना? डीवी बाई वी, डीवी का इंटीग्रेशन क्या होता है? वी, तो ये हो जाएगा वी माइनस 0, वी माइनस यू। ये वी आर कॉन्स्टेंट है। व्हाट इज डीएम बाई एम का इंटीग्रेशन? log m not by m. ओके, एल एन एम नॉट बाई एम। एक मिनट, हाँ ठीक है। ये क्या हो गया? एल एन एम नॉट बाय, नहीं एम नॉट बाय एम नहीं आएगा, एम बाय एम नॉट। हेलो, Yes sir. माइनस जी टी। Minus. अच्छा यहाँ पर है ना, मैंने एक गलती कर दी है, यहाँ पर आपको माइनस साइन लेना पड़ेगा फैक्टोरियली। कैन आई से ये, तो ये माइनस हो गया ना, मतलब क्या? इसके लिमिट्स उल्टे हो जाएंगे। तो will be v equal to u minus gt plus vr ln हेलो, यस और नो? Yes sir. Yes, sir. ये ध्यान रखना भाई, ये जो है वो माइनस साइन के साथ है, बिकॉज मास घट रहा है ना, भी बताना पड़ेगा। माइनस डी एम बाई डी, ये फॉर्मूला यू शुड नो, लर्न बाय हार्ट। यस और नो? हेलो, ठीक है। चलो अभी कुछ और सम्स करते हैं इसके बेसिस पर, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड। ठीक है, चलो शुरू करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 8, दिस इज इंट्रोडक्टरी एक्सरसाइज 11.4। अच्छा फॉर्मूला सबको याद है? v का फॉर्मूला क्या था बेटा? q माइनस जी टी प्लस वी आर एल एन ऑफ एम नॉट बाई एम। भाई यही यूज होने वाला है, दिस इज गोइंग टू बी यूज्ड एवर। चलो अभी पोस्टमार्टम करते हैं सम का। अभी आपने एक दो सम भी सॉल्व कर दिया तो ये पूरा टॉपिक आपका हो जाएगा। अ रॉकेट ऑफ मास 20 kg एंड 180 kg फ्यूल, ये इसका मतलब क्या होता है? हाउ मच इज एम नॉट? 200. 200, बहुत सही है। दिस इज एट टाइम 0। हेलो, द एग्जॉस्ट वेलोसिटी इज 1.6। ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? हेलो, एग्जॉस्ट वेलोसिटी क्या होती है? अरे ऐसे क्या कर रहे हो? VR. That is the fuel. एग्जॉस्ट वेलोसिटी, Yeah. हाँ तो फ्यूल ही है ना, एग्जॉस्ट वेलोसिटी तो हाँ। फ्यूल ही होता है। Yes sir. कितना हो गया? 1600 मीटर पर सेकेंड। हेलो, नहीं 1600 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट द मिनिमम रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ फ्यूल सो दैट रॉकेट में राइज फ्रॉम द ग्राउंड। अच्छा पहले क्वेश्चन, हेलो प्लीज ध्यान दो बेटा। So is हाँ। it possible that you can use a color like black because this is flashing too much? ठीक है ठीक है, देखते हैं, चलो एक मिनट। Oh God. ठीक है चलो देखते हैं। चलो इधर देखो, यस लिसन टू मी, प्लीज लिसन एवरीवन। Yes sir. क्या बोल रहा है ये? क्या चाहिए हमको? वी नीड व्हाट? पहले केस में हमको क्या मांगता है बेटा? dm by dt. dm by dt, we require the minimum rate of consumption of fuel. Yes sir, dm by dt। अब ये बराबर है?
Ah, yes, sir. This is better, sir. dm by dt हमको मांगता है, yes, such that rocket may just rise from the ground. may rise मतलब may just rise. Okay, how much is net force? याद है नेट फोर्स हमने जो लिखा था डेरिवेशन के अंदर? अरे मेरा बच्चा, क्या लिखा था? Ft Thrust minus force net. minus mg. Yes, F net. F thrust कितना है? Vr minus dm by dt minus mg. But they are asking you just lift. मतलब F net is equal to what बच्चा? 0. तो F net is equal to 0 मतलब Vr minus dm by dt will become equal to mg. Vr कितना है? 1600 minus dm by dt you require. m कितना है? पूरा m लेना है स्टार्ट में. 200. 200 into g is 10. तो dm by dt यहां से आपको मिल जाएगा. Are you all understanding what's happening? Will be Yes, sir. 2000 by 1600 with a minus sign obviously. Did you all understand this thing? ये क्या है? Just lift. Hello? Yes, sir. अच्छा, ये पहला पार्ट है. This is the first part, huh? This is part 1. Calculate the ultimate vertical speed. What does the ultimate vertical speed mean? V. When the rate of consumption is 2 kg per second. तो सबसे पहले हम लोग केस 1 पढ़ते हैं. केस 2 आप लोग कर लेना. Rate of consumption is 2 kg per second मतलब क्या? What is dm by dt? 2 kg per second. हाँ, 2 kg per second. तो कोई बता सकता है कितना टाइम लगेगा फ्यूल को खलास होने में? 10 seconds. Sorry. 90 seconds, sir. कितना टाइम 10 लगेगा? seconds 90 90 seconds, sir. 90 seconds. फ्यूल इज 180 ना बेटा. 20 तो 90. मास है. So time taken is 90 seconds because the rate is 2 kg per second and 180 kg fuel is there. Is everyone with me? Because ये फॉर्मूले में T की भी जरूरत पड़ेगी आपको भाई. Yes, sir. T की जरूरत पड़ी ना आपको. देखो चलो अभी फॉर्मूला लगाते हैं. V is equal to U minus GT plus VR ln of m naught by m. V is equal to U कितना है? U स्टार्ट में कितना है? 1.6 kilometer. नहीं, वो तो VR है. So 0. इनिशियल स्पीड 0 है ना. Ah, yes, sir. माइनस G is 10. टाइम कितना? 90 प्लस VR 1600 ln of m naught 200 by m. What is m? 20, This is sir. mass left after t time. हेलो, कितना बचा यार? 20 बच गया. 20, sir. तो ये 10 हो गया. अच्छा, ये कितना होता है? माइनस 900 प्लस 1600 ln of 10. यार कितना है ln of 10? केमिस्ट्री में पढ़ा है क्या? log 10 कितना होता है? 1. log 10 1 है, बट ये ln है. हाउ टू कन्वर्ट ln टू log और log टू ln? 2.303. हाँ बस हो गया. 2.303 into log 10 1. एंड log 10 तो आपको मालूम है 1 होता है. तो ये तो कर ही सकते हो ना आप लोग. हेलो. Yes, Yes. sir. एंड सेकेंड पार्ट आप लोग खुद से कर लेना. ये कितना टाइम लगेगा इसको खलास होने के लिए? 9 seconds. 9 seconds. So you just need to put 9 seconds. Hello, yes or no? Getting it? Yes, So sir. this was the application when you understand the derivation. एक बार डेरिवेशन आपको आ गया तो these are hands on होंगी, फटाफट आ जाएगा आपको. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. सब लोग ने स्क्रीनशॉट ले लिया ना भाई? ये जो भी yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Yes, चलो sir. भाई अभी ये पढ़ो. 9th वाला क्वेश्चन पढ़ो. और रॉकेट विद इनिशियल मास. चलो बताओ क्या है ये? M naught. नॉट है ना?
is launched vertically upwards from rest under gravity. Rest मतलब u0 है. The rocket burns with a rate of, कितना रेट है यार इसका? 10 kg per second. हाँ, एक मिनट. हाँ, ठीक है, चलो बताओ कितना रहेगा? तो u तो 0 है, dm by dt So 10 kg per second. ये माइनस dm by dt है. The burnt matter ejected vertically downward is the speed of vr, कितना? 2000 relative to the rocket. If the burning ceases after 1 minute, time is 60 seconds. Find the maximum velocity. यार ये कोई समय है क्या? हेलो, 60 seconds में कितना फ्यूल खत्म होगा? 60 seconds में कितना फ्यूल खलास हो जाएगा? 600. अरे यार बर्निंग रेट 10 है ना Yes, sir. सब. तो ये तो how much is the mass left after time t? 400. 400. Can you tell me the formula? V is equal to u minus gt plus vr ln of m naught by m. So v will become u 0 minus g is 10 t. ये हो जाएगा 600 plus vr 2000 ln of m naught 1000 by 400. ये कितना रहेगा? v is equal to minus 600 plus 2000 ln of, ये कितना होगा? 2.5. So this will be v is equal to minus 600 plus 2000 into 2.303 log of 2.5. हेलो, log of Yes. 2.5 आपको साइड में दिया रहेगा आईआईटी एग्जाम में, साइड में इधर ऐसे दिया रहेगा ताकि आप यूज कर पाओ. लॉग टेबल वॉक टेबल कुछ नहीं देते हैं, ये कुछ साइड में वैल्यू दिया रहेगा. यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ v. यस और नो सर? Yes, sir. Or ln value also will be given, maybe. नहीं, जनरली दे गिव यू लॉग ओनली. ln भी दे अच्छा. सकते हैं, ln भी दे सकते हैं, जनरली दे गिव यू लॉग ओनली. ठीक है यार, कोई Okay, प्रॉब्लम sir. नहीं है. Yes, sir, yes, sir, yes, तो sir. मैथमेटिकल पार्ट है. चलो आगे क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज देयर. क्या कह रहा है ये? द रॉकेट इज मूविंग वर्टिकली अपवर्ड एट मास आफ्टर टाइम t इज m is m naught minus mu t. कोई बता सकता है ये क्या है? पहले मास कितना था? What does this mass mean? Remaining or the left mass. Mass after Time t. time t. ये क्या है? Original mass. बहुत सही. ये क्या है? Rate of burning. वेरी गुड. ये dm by dt यही मांगता है मुझे. यस और नो सर? Yes, sir. आपको आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है. एंड दिस इज द टाइम टेकन. ठीक है बेटा. तो dm by dt यहाँ पे क्या है? म्यू है, म्यू. ये आपको पहचानने आना चाहिए. क्या बोल रहा है? इट इज एक्सपेल्ड इट expels burn fuel at the speed of u, मतलब vr is u. Downward. Derive the equation for motion of the rocket, but do not solve it. सॉल्व बॉल नहीं करना है, मतलब इंटीग्रेशन कुछ नहीं करना है आपको, सीधा सीधा सॉल्व करनी है इक्वेशन. ओके. इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ द रॉकेट. व्हाट इज मोशन? इक्वेशन ऑफ मोशन एफ नेट इज एम ए. अरे भाई ये मोशन का इक्वेशन है ना, लॉज ऑफ मोशन. हेलो, Yes, sir. यस और नो? अच्छा, कौन सा नेट फोर्स लग रहा है? डेरिवेशन सबको याद है. थ्रस्ट फोर्स ऊपर की तरफ, mg नीचे की तरफ विल बिकम इक्वल टू ma. Yes or no? Yes, sir, yes, Yes. sir. What is the formula for thrust force? VR minus dm by dt. Vr minus dm by dt minus mg. अच्छा, ये m कौन सा m है? Is this the original mass or mass after time t?
So Mass after time t. आपने डेरिवेशन किया रहेगा तो ही समझ आएगा. आपने किसने क्वेश्चन भी पूछा था डेरिवेशन के वक्त? आर्यन ने शायद पूछा था. यस और नो? Yes sir. Yes, हेलो. sir. तो दिस इज मास आफ्टर टाइम टी. मास आफ्टर टाइम टी का ये इक्वेशन मौजूद है मेरे पास. कैन आई राइट दिस मास की जगह पे m नॉट माइनस म्यू टी इंटू जी? हेलो, will become equal to m. This mass is also mass after time t. Can I write this as m naught minus mu t into a? Yes, sir. क्या हो रहा है यार? कुछ समझ में आ रही है बात आप लोग को? Yes, sir. Yes. ओके, तो ये हमारा इक्वेशन है. Can I write this as VR minus dm by dt? VR minus dm by dt को minus mu लिख सकते हैं? Yes, sir. Minus m naught So minus VR is mu also t. mu sir. VR is also u ना? u दिया हुआ है ना? Yes sir, mu. हाँ, mu नहीं, u हाँ, u. u minus mu m naught minus mu t will become m naught minus mu t into a. Yes or no? ठीक है? Yes, sir. चलो आगे बढ़ते हैं. So one sec. हाँ भाई. Sir, m naught minus mu t into g sir, left hand side. हाँ ठीक है जी भी आएगा. ठीक है, Yes, sir. सॉरी भाई. अंडरस्टैंडिंग? Yes sir, yes sir. Yes, sir. Done. चलो यार ये बताओ. हाँ बेटा क्या हुआ? So here we took VR as U. दिस गिवन ना VR is u. देखो, Okay. अरे भाई जो दिया है उसको लिख दिया मैंने, और कुछ नहीं किया मैंने. हेलो, Okay. यस और नो? Yes, sir. चलो ये बताओ. चलो ये बताओ कैसे करेंगे? ये वही तो है. चलो बताओ कैसे करेंगे यार, जल्दी बताओ. चलो dm by dt कितना है? dm by dt कितना है? अरे इक्वेशन दिख रहा ही है. m is m naught U. 1 minus t by 3. एक मिनट, इसको अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. m naught minus m naught by 3 into t. हेलो, Yes. how much is dm by dt? U. हाँ, कहाँ u किधर है यार? u है ही नहीं इधर तो. dm by dt कितना है? dm by dt is m naught by 3. Okay. ये दिख रहा है, इतना कम हो रहा है ना बेटा. अरे लास्ट टाइम तो ये म्यू था ना हमारा, अभी यार ये देखो. yes or no? Yes, sir. The rate of change of mass is m naught by 3. अच्छा, रेस्ट मतलब u is 0 and expels burned fuel relative to the rocket. Find the speed of the rocket at t is equal to 1 second. Can anyone tell me at t is equal to 1 second how much is the mass left? So if I put t over here in this equation, m will become m naught minus m naught by 3. t को 1 second put करेंगे ना, तो what will be m after 1 second? कितना हो जाएगा? 2 m naught by 2 3. by 3 m naught. Yes. अरे भाई आप लोग को समझ Yes में sir, आ रहा है yes क्या हो रहा है? Yes, sir. यार कुछ नहीं है, टाइम पास है ये सब. फाइंड द, क्या निकालना है? फाइंड द स्पीड. मतलब v is equal to u minus gt plus vr ln of m naught by m. चलो शुरू हो जाओ. v u कितना है? 0 है. माइनस g 10. टाइम इज 1 सेकेंड. vr कितना है? vr u कह रहा है. U given. vr is u given. ln of m naught को m naught ही लिखेंगे. yes or no? Yes By sir. m कितना है? 2/3 m naught. यार क्या हो रहा है यार इसमें? Yes, ये हो sir. गया माइनस Yes, 10 sir. प्लस u. ये तो वैसे ही उठ जाएगा. ये 3/2 मतलब ln of 3/2 हो जाएगा. 1.5. जो भी आता है वो देख लेना. ln of 1.5. इसमें ही आंसर आपको छोड़ देना है, Yes. बिकॉज इसके आगे कुछ दिया नहीं हुआ है. और अगर दिया रहेगा तो ln of 1.5 आपको दिया रहेगा क्वेश्चन में.
I hope you all are understanding. Yes, sir. Yes, sir. चलो बाबा, अभी कितना टाइम बाकी है? हाँ चलो 15 मिनट है और एक सेक्शन उड़ा देते हैं फटाफट, ठीक है? एकदम इजी सेक्शन है ये। आपको मालूम है इम्पल्स, चलो मैं इधर ही थोड़ा सिनॉप्सिस सिखा देता हूँ, इधर सिखा देता हूँ, फिर इस पर आप कर देंगे। इम्पल्स, इम्पल्स का फॉर्मूला क्या है? Force into time. बहुत सही है, बहुत। इम्पल्स इज फोर्स इन टाइम। और एक फॉर्मूला था इसका, हेलो चेंज इन मोमेंटम, P फाइनल माइनस P इनिशियल। हेलो Yes, sir. यार, F is dp by dt ना, F is dp by dt ना, so F dt will become dp ना। हेलो Yes, sir. Yes, sir. हाँ, मजा आएगा, देखो फटाफट करते हैं। चलो अभी इधर आओ आगे। अच्छा, इसमें 3 टाइप्स है, बस 3 टाइप के सम्स है। पहले वाला impulse is force into time which is P final minus P initial when force is constant। तो सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर देना है, आंसर आ जाएगा। या तो कभी कभी कुछ लोग उसका एवरेज फोर्स भी लिखते हैं। ये टाइप 1 है। टाइप 2 क्या रहेगा? J विल बी F into dt इंटीग्रेशन P फाइनल माइनस P इनिशियल। इधर फोर्स क्या है? फंक्शन ऑफ टाइम। अरे सब चैंपियन लोग बैठे हैं यार। हाँ, इंटीग्रेट करना है फ्रॉम T1 टू T2। yes or no? Yes, sir. And third, J is area under। कोई बता सकता है एरिया अंडर? Force time graph. बहुत मजा आएगा। yes sir, force time graph। that could also be written as change in momentum, that is P final minus P initial। उसको छाप लेंगे तो हर एक सम आपका कंप्लीट हो जाएगा, मतलब इसमें ही आप सम्स कर पाएंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। हाँ भाई, अच्छा मैंने ना एक इक्वेशन निकाला है। याद है आपको वर्क एनर्जी प्रिंसिपल में मैंने एक इक्वेशन निकाला था जो हर एक सम में सॉल्व होता था। कौन सा फॉर्मूला था वो? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क Plus work done equals to Equals final final. energy. सबको याद है, बहुत सारे सम्स हम यही चीज से उड़ा देते थे, बराबर है क्या? Yes, तो sir. ही इंपल्स मोमेंटम इक्वेशन के लिए मैंने एक इक्वेशन निकाला है। ऑलवेज रिमेंबर, इनिशियल मोमेंटम प्लस माइनस इंपल्स इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। यही चीज है। यस और नो? अरे वही तो है, जे इज चेंज इन मोमेंटम। देखो तो यार, चलो शुरू करते हैं। 12वां क्वेश्चन है, ट्रक ऑफ मास दिस मच इज ट्रैवलिंग दिस मच। तो कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज इनिशियल मोमेंटम? यार बोलो। इज ब्रॉट टू रेस्ट 0 in a time of how many seconds? 2 seconds। what is the force? एवरेज फोर्स निकालना है। चलो कौन सा फॉर्मूला? इनिशियल मोमेंटम माइनस इंपल्स, बिकॉज इंपल्स लगा तो ही तो रुका। अरे झटका लगा तो ही तो रुका। हेलो, इनिशियल मोमेंटम कितना है? 8000 माइनस जे फाइनल, तो जे कितना हो जाएगा? 8000। बट जे का फॉर्मूला क्या है? पुट इनटू टाइम। यार ये कोई सम है क्या? ये सब क्या कर रहे हो? क्या टाइम पास है? ठीक है, 2। व्हाट इज द एवरेज फोर्स? 4000 न्यूटन। डिड यू अंडरस्टैंड? हेलो Sir, what is the average this unit of P, sir? Momentum. आप बताओ। मास इनटू वेलोसिटी, केजी मीटर पर सेकंड। kg meter per second. Okay, sir. या तो दूसरा फॉर्मूला क्या है? दूसरा भी यूनिट है इसका, न्यूटन सेकंड, बिकॉज इट इज इंपल्स आल्सो ना। Yes, ये sir. क्या? Yes, sir. Yes, sir. न्यूटन सेकंड भी लिख सकते हैं ना भाई। चलो आगे बढ़ते हैं यार।
टाइम पास कर रहे हैं इधर. हाँ, a ball of mass is traveling with a velocity of this much. तो initial momentum कितना बना? m into v initial, that is m into 2i cap plus 3j cap. बोलो, impulse कितना लग रहा है? -3 m. m मतलब मिली. हेलो, i cap सही है क्या? What is the velocity of the ball immediately? क्या चाहिए? v final. कौन सा फॉर्मूला लगाना है? p initial plus minus j is equal to p final. p initial तो मालूम ही है, m into 2i plus 3j. यार टाइम पास करना है आप लोग को. प्लस j, बट j का वैल्यू कितना है? 3 into 10 raised to minus 3 i cap is equal to p final. p final को लिख सकते हैं m into vf. तो vf यहाँ से वेक्टोरियली आपको मिल ही जाएगा ना. हेलो यार, हेलो, yes or no? Any doubt? Any doubt? No, sir. So सबको आ रहा है here ना? you just divide by m, na? हाँ, you just divide by m, Left you hand get the side. answer in terms हाँ. of that. ओ यार, आ जाएगा. आप लोग सब Yes, स्केलर sir. वेक्टर्स तो कर ही चुके हैं ना. Yes, sir. Yes, sir. चलो, क्या करना है इसमें? इसमें क्या करना है? हेलो, इसमें Area क्या under करना है यार? graph. इसका एरिया निकालो यार. triangle इसका एरिया ऑफ ट्रेपेजियम will become equal to impulse. बोलो. yes sir तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकालो. कौन चैंपियन लोग निकालो. चलो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम फटाफट. कितना आएगा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम? यार कितना आएगा? 240, sir. 240. सबको एरिया मिल गया. 240 मिला. विल बिकम जे. बराबर. ओके. अच्छा, जे का वैल्यू कितना है? एफ इंटू टी. तो 240 विल बिकम एफ. एफ तो पता नहीं है. टाइम कितना दिया है क्वेश्चन में? 16, sir. 16 सेकेंड है ना. तो एफ मिलेगा. 15. एफ मिला कितना? 15. और क्या मांगता है आपको? वेलोसिटी ऑफ द रॉकेट. तो एफ इज एम ए. कैन आई राइट एम v माइनस यू बाई टी. आर काइनेमैटिक्स में घुस गया ना ये सब. तो और यहाँ से v मिल जाएगा आपको. यस और नो? u कितना है? u 0 बिकॉज दे आर टेलिंग यू इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट. हेलो, Yes, sir. ठीक है. चलो आगे बढ़ते हैं. लास्ट सम. अ 5 ग्राम बुलेट, मास दिया है 5 ग्राम, इज मूविंग एट द स्पीड ऑफ. इनिशियल स्पीड कितना है? 100 मीटर पर सेकेंड. तो इनिशियल मोमेंटम कितना हो जाएगा? 500 into 10 raised to minus 3, that is 0.5 kg meter per second. Strikes a log, assuming that the bullet undergoes uniform deceleration and stops 6 centimeters. The time taken by the bullet to stop, the impulse and the average force. यार इसको सीधा सीधा काइनेमैटिक्स से सॉल्व करो. कैसे करेंगे? अरे बोलते नहीं हो यार तुम लोग. हैं कैसे करेंगे? चलो कोई बता सकता है? ऐसे v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as. हेलो भाई यार, क्या u v तो 0 है ना. 0 हो गया ना भाई वो. हाँ, u कितना है? u तो 100 है प्लस 2a. a is the acceleration. s कितना है? 6 सेंटीमीटर. यहाँ से a मिलेगा. a मिला तो क्या मिला? a मिला तो f मिला. एंड j कैसे मिला? j कैसे मिलेगा? Change in momentum. चेंज इन मोमेंटम. तो एम वी तो 0 था ना फाइनल. माइनस एम यू. 0 माइनस एम यू मिल गया. और क्या चाहिए हमको? टाइम भी चाहिए ना. तो विच फॉर्मूला? Force into time. ऐसे भी कर सकते हैं. So we can do from chase FT also. वैसे भी कर सकते हैं बेटा. इससे भी कर सकते हैं. कोई बड़ी बात नहीं है. आप अपने मेथड से करो. हेलो, you can do by average force into time is impulse also ना. Yes, sir. Yes sir. हाँ हाँ, टेल मी. ठीक है, चलो. Yes.
थैंक यू. So, sir, what's the average force equal to impulse? J is equal to average force into time. Okay, sir. Yes, sir. क्या है थोड़ी देर ठीक है. So, Yes, could sir. you go to the previous slide? हाँ ये Yeah, okay, sir. ठीक है. अभी मेरी बात सुनो बेटा थोड़ा. We have been left with introductory exercise 16 only 11.6. That I'll be doing it on Sunday. हाँ Sunday को एक्स्ट्रा लेक्चर रहेगा मेरा भी और वीराव सर का भी. ओके हेलो समझ में आ रहा है ना. कोलिजन सिखाऊंगा वो दिन पर. हाँ Sir, हेलो. can you come to the 15th some next page, sir? So here F average will be what we found, or F average we take some नहीं F average is the average force what we found out ना. MA only, na? हाँ MA. Okay, sir. Yes, sir. देखो एवरेज फोर्स का कॉन्सेप्ट क्या. थोड़ा 2 मिनट सुन लो सब लोग. सुन लो प्लीज. देखो एक्चुअली जो फोर्स लगता है ना बुलेट के ऊपर वो ऐसे होता है. समझ में आ रहा है क्या. अरे इमेजिन करो एक बुलेट दीवार से टकरा रही है. हेलो. Yes. तो फोर्स जो लगेगा स्टार्ट में बहुत ज्यादा लगेगा. फिर फोर्स कम हो जाएगा कम हो जाएगा कम हो जाएगा और फाइनली व्हेन द बुलेट इज एम्बेडेड इनटू द वॉल फोर्स कितना हो जाएगा. 0. 0. मगर ये चीज को हम लोग फाइंड नहीं कर सकते. इसलिए हम लोग इस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं एक एवरेज फोर्स की तरह. इसी को इसमें कन्वर्ट करते हैं. इसको बोलते हैं एवरेज फोर्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम टी. आर्यन समझ में आया आपको. Yes, sir. Yes, sir. Understood. तो ये उसका So- कॉन्सेप्ट है. हाँ बेटा. So, this sum 30 thought. So, should it previous slide? ये Yeah, so what you took as milli, so that is not milli, it should be F, no, otherwise we cannot calculate PF. अरे एम है. हाँ बराबर है. मिली नहीं है वो एम ही है. हाँ एम है. एम है एम है. बिकॉज ये सब एम आ रहा है ना तो ये तो एम उड़ जाएगा. Yes. ठीक है. हेलो. Yes, sir. हाँ ठीक है. वो सब देख लेना आप लोग. उसमें कोई वो नहीं है. ठीक है. डिड यू गेट इट. चलो थैंक Yes, यू sir. सर. थैंक यू सर. थैंक यू.